अगर मैं अपनी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करूँ तो मैं एक बहुत डरी हुई लड़की थी जो लाइफ में बस कुछ करना चाहती थी लिटरली। हुँ। सो मैं मैम से भी अपनी हर समय डर के ही पूछती थी, मैम मैं कुछ कर लूँगी ना, मैम मैं कुछ कर लूँगी ना। सो वो एक डरी हुई स्थिति थी जिससे लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। लग रहा है ना आपको अर्निंग खत्म हो रही है या फिर हम कुछ कर नहीं पा रहे लाइफ में, वहाँ से लर्निंग शुरू करनी होती है हमें। हुँ। A very good afternoon, everyone. Welcome to the Not Alone at the Top Unsaid Stories of Heroes podcast, where we delve deep into the dynamic world of community leadership. Join as we uncover the insights, experiences, and advice from leaders who have successfully built and impacted multiple communities. This podcast is brought to you by Women Today, we have with us Ms. Tuti Agarwal, who is the founder of UttarPradeshLife.com. This channel initially started as a channel where ma'am used to interview people and also make comedic content. But slowly, 5 years ago, it got converted into a social media agency. Ma'am also has represented herself in an international public speaking championship as a keynote speaker. Ma'am tries to understand the needs of local businesses and emerging brands, the unique needs of them, and tries to solve the problem through her social media agency. Ma'am also empowers women entrepreneurs through community engagement, networking, and collaboration. It's an honor to have you here, ma'am. Welcome to Not Alone at the Top. Thank you so Uh, much. okay, ma'am. So, ma'am, before we start, I just wanted to give you a little title, and I've decided it as Queen of Social Media. And because although it's just been 5 years since it's become a social media agency, but you have more experience in the field, so that is the title I thought was apt for you. Okay, so, ma'am, let's start. I first want to ask you, what was the inspiration or the motivation behind you choosing a career in the field of social media? What was that? एक्चुअली जैसे हर लड़की का एक ड्रीम होता है, सो मेरा ऐसे कोई ड्रीम नहीं था। आई वाज लाइक मैं हमेशा बहुत सिंपल लाइफ के बारे में सोचती थी। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज डूइंग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम मदर्स सिटी। आई यूज्ड टू थिंक कि मैं तो डेस्क जॉब करने वाली ही इंसान हूँ एंड आई डू सम बीकॉम और आफ्टर जर्नलिज्म आई डू अ डेस्क वर्क। सो मतलब मुझे बस इतना ही लगता था कि इतना जॉब मिल जाएगा ना, आई विल बी फाइन। पर एक्चुअली मेरी लाइफ में कुछ और ही लिखा हुआ था, बिल्कुल डिफरेंट जर्नी जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, मैं सोच ही नहीं सकती थी एक्चुअली। और इसके पीछे का सबसे बड़ा मोटिवेशन है ट्रुति दीदी, ऑब्वियसली फाउंडर ऑफ वुमेन इनोवेटर। बिकॉज़ उन्होंने कुछ किया कि यू हैव टू बी लाइक इंडिपेंडेंट, क्योंकि शादी के बाद भी यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। जॉब छूट जाती है, your business can never go. So you have to start something of your own. So it was her idea कि मैं अपना एक channel start करूँ. But I was like मेरे को mic का बहुत fear था. I just can't stand the camera. I've learned everything और बहुत सारे challenges face करके I started taking these interviews. So this is how my journey started, and my parents both like motivated me. Wow, हाँ, ma'am. उसमें बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज आपसे कोई ऐसा कह दे और आप सिर्फ किसी के कहने पे अपना पूरा करियर नहीं दे सकते। लाइक जॉब छोड़ के आप, या जॉब तो मैं करती ही नहीं थी उस टाइम पे, ढूंढ रही थी इंटर्नशिप्स, बट फिर भी आप किसी के कहने पे सिर्फ एक कोई नया पूरी अपनी लाइफ तरीके से नहीं स्टार्ट कर सकते, राइट? तो कोई Yes. कहीं ना कहीं मैं उन पर शायद ट्रस्ट करती थी बहुत ज्यादा कि the way she works, how professional she is, तो मुझे लगता था कि if I'll be connected with her, मेरे को लाइफ में कुछ ना कुछ करा ही देंगी। So that was the trust मैंने किया और अपनी लाइफ का ये डिसीजन लिया इतना बड़ा कि I can do it. She pushed me. Wow, ma'am. That is very empowering. और I think जो हमारे viewers आज देख रहे हैं उनको भी, क्योंकि काफी population married होंगी और शायद उनको भी कभी ये लगता होगा कि हमने या तो शादी चूज करो या तो करियर चूज करो, बट आई थिंक आपने जो बोला वो एक बैलेंस ट्राई कराएगा उनके दिमाग में कि आप दोनों भी कर सकते हो। तो मैम करना बहुत अच्छा चाहिए, लगा। और इनोवेटर तो हमें सिखाता ही एक्चुअली यही है कि लाइफ बैलेंस कैसे करनी चाहिए। एग्जैक्टली मैम, आई कम्प्लीटली एग्री। तो मैम अभी जैसे आपने बोला कि आप जॉब नहीं कर रहे थे, आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, तो अब हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि आप रियल स्तुति अग्रवाल कैसी है।
अगर मैं बोलूं कि चलो प्रोफेशनल फ्रंट को छोड़ के आपको और क्या करना पसंद है रियल लाइफ में, मतलब करियर को छोड़ के आप कैसे हो, आप कैसे इंसान हो, उसके बारे में थोड़ा समझना चाहती हूँ। कि अगर मैं अपनी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करूँ तो मैं एक बहुत डरी हुई लड़की थी जो लाइफ में बस कुछ करना चाहती थी लिटरली। हम्म, सो मैं मैम से भी अपनी हर समय डर के ही पूछती थी, मैम मैं कुछ कर लूँगी ना, मैम मैं कुछ कर लूँगी ना। सो वो एक डरी हुई स्थिति थी जिसने लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। सो सामने से मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट या फिर ग्लैमरस वाली फ़ील्ड की हूँ तो लोग काफ़ी कुछ परसेप्शन लगा लेते हैं। हम्म, बट अदरवाइज़ माय इनर चाइल्ड इज़ वेरी एक्टिव। मतलब मुझे बच्चों के साथ खेलना या फिर अंदर से एक बहुत बचपना है और वो मैच्योरिटी और वो बचपना मेरे को बैलेंस करना अच्छा लगता है। सो जैसे आज भी पार्क में खेलना या फिर बार्बी डॉल्स, बार्बी हाउस देख के एक्साइटेड होना, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं है मेरे अंदर। और बाकी वर्किंग प्रोफेशनलिज़्म इन चीज़ों के अलावा आई लर्न मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज या कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखना पसंद है। सो आई वॉच मूवीज़, सीरीज़ और आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। सो yes. बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, बस मुझे सीखना बहुत पसंद है, सो आई लव एक्सप्लोरिंग। वाओ मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत रियल स्टेटमेंट दिया आपने, क्योंकि बहुत कम लोग बोलते हैं कि हमारा इनर चाइल्ड एक्टिव है, और वो आप कितने भी बड़े हो जाओ वो बचपना तो अलाइव रहना ही चाहिए। और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप ओपनली वो बता रहे हो हमारे व्यूअर्स को। ग्रेट मैम। अब मैम मेरे को आपसे पूछना है कि अगर मैं बोलूँ कि कौन सी टॉप 3 स्किल्स हैं जिसने आपको अपने करियर एडवांसमेंट में हेल्प करी है, तो वो 3 स्किल्स क्या होंगी? कॉलेज में ना मैंने कुछ सीखा नहीं सीखा, सबसे ज़्यादा वीडियो एडिटिंग और फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटोशॉप मैंने बेसिक लर्न वहाँ पे कर लिया था और उसने मुझे लाइफ़ में इतनी हेल्प करा है बिकॉज़ मैं अपने इंटरव्यूज़ खुद शूट करना, खुद एडिट करना हुँ, और लोगों के पास नहीं होते लोग ये काम कराने के लिए। हुँ, तो ये जो मेरा स्किल है ना, इसने मेरे को हमेशा हेल्प करी है कि मैंने सब कुछ खुद से खुद किया और हुँ। उसके बाद कैनवा ऐप मतलब इट्स लाइक मैं उसकी पूजा करती हूँ ऑनेस्टली। यस मैम। तो आई हैव लर्न्ड एवरीथिंग फ्रॉम कैनवा। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुँ, हुई थी कैनवा चलाने हुँ, में बट देन स्लोली स्लोली आई एक्सप्लोर्ड इट और अब मैं उससे हुँ, मतलब लिटरली बहुत कुछ बना लेती हूँ। हुँ, सो कैनवा एक ऐसा स्किल है जो मैं सिर्फ से मुझे ही नहीं सबको आना चाहिए। हुँ, और उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो गया या फिर कैमरा फेस करना भी अपने आप में एक स्किल है। ये सब चीज़ें बिल्कुल मैंने मैम। टाइम के साथ सीखी हैं बिकॉज़ जो मेरा वर्क है मैं इन चीज़ों से दूर रह नहीं सकती। यस मैम। सो टेक्निकली अपग्रेड करती रही खुद को। वाओ मैम, वाओ! दैट साउंड्स वेरी गुड। और आपने सही बोला मैम, फोटोशॉप की पावर इज़ इमेंस। मतलब हर चीज़ में फोटोशॉप यूज़ हो सकता है, और मेरे को भी मैम पर्सनली वो स्किल सीखनी है। आई नेवर फाउंड द टाइम सी बट ये भी एक चैलेंज रहा है लाइफ में बिकॉज़ मैंने कभी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया किसी भी एडोब फोटोशॉप या किसी भी चीज़ में। हुँ, सो कहीं भी अगर हम जॉब अप्लाई करते हैं दे आस्क फॉर सर्टिफिकेट। सो हुँ, व्हाट यस आई मैम। डिड आई डिसाइडेड कि मुझे करना ही नहीं है कोई भी कोर्स। मैं हुँ, कैनवा को ही अपना स्किल बनाऊँगी और उसमें हुँ, प्रो होंगी। मतलब व्हाट यस। बेस्ट आई कैन गिव फ्रॉम कैनवा आई विल हुँ, डू दैट। और अब जब मैं खुद इस जर्नी पे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितने यूट्यूब चैनल्स हैं जो सेम हुँ, ऐसा कर रहे हैं। हुँ, यस मैम, एक्चुअली, वाओ! ओके, तो मैम मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आपने बोला कि आपने अपने इंस्पिरेशन में तृप्ति मैम का नाम लिया। पर अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपको विमेनोवेटर के बारे में पता कैसे चला? या तृप्ति मैम के बारे में आपको पता कैसे चला? ये आपकी जर्नी पूरी कैसी रही विमेनोवेटर के साथ? ऑनेस्टली तृप्ति दी मेरी कज़िन है सो आई नो ओके। हर मतलब बचपन से। बट उनसे कनेक्ट होना के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। हुँ, जब मैं कॉलेज में थी आई वाज़ डूइंग माय इंटर्नशिप इन ज़ी बिज़नेस जो मेरी तृप्ति दी ने ही लगवाई थी इंटर्नशिप। ओके। सो एट दैट टाइम आई विज़िटेड हर ऑफिस ऐसे मिलने गई थी इन जनरल बट आई सॉ हर वर्किंग और उनका वर्क करने का तरीका, उनका प्रोफेशनलिज़्म मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ज़ी में भी नहीं है और जो हुँ, यहाँ सीखने के लिए मिल सकता है वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। सो हुँ, अनकॉन्शियसली आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग कि आई हैव टू वर्क विद हर हुँ। और एक्चुअली वो मैनिफेस्ट हो गया। वाओ मैम! सो मैम आई रियली अ, लव यू आर वेरी काइंड। आप बहुत ही काइंड हो एज़ अ पर्सन, एंड इट्स वेरी नाइस टू हियर। सो
बस वहीं से तृप्ति दी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने मेरे को वुमेन ऑफ का पार्ट बनाया जब उन्होंने देखा कि मैं अपना खुद का चैनल पे काम कर रही हूँ, कंटिन्यूअसली वर्क कर रही हूँ और ग्रो भी किया है मैंने। सो उसके रीज़न से मैं वुमेन ऑफ का भी पार्ट बन गई एंड उससे पहले मैं रसोई क्वीन वगैरह भी अटेंड करती थी, तो मैं ऑलरेडी कनेक्टेड थी। तो आई ओके। हैव सीन वुमेन ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम लाइक अ बेबी थिंग। Oh, that's adorable, मैम। ओके, तो मैम जैसे कि आपने बोला कि आपकी जो जर्नी रही है, आपको इतना पता था कि आपको कुछ करना है, ये आपने बोला था, है ना? कि कुछ करना है पर पता नहीं था वो कुछ क्या होगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पीछे मुड़ के देखो और आप देखो कि मैं 15 साल की स्तुति अग्रवाल को अगर मैं एक छोटी-सी एडवाइस देना चाहूँ, आज की स्तुति अग्रवाल होके, तो वो क्या एडवाइस होगी मैम? एक्चुअली एडवाइस तो पूरी ज़िंदगी दी है, तो एडवाइस नहीं देना चाहूँगी मैं, एक्चुअली बहुत सारा लव भेजना चाहूँगी। ओह! बिकॉज़ जब हम ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता, हम बहुत हार्श हो जाते हैं अपने साथ। बिकॉज़ ऑफ हुँ, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। सो हुँ, हमें लगता है कि हमें भी ग्रो करना है और उसकी वज़ह से हम खुद पर काफ़ी हार्श हो जाते हैं। यस मैम। सो मैं एडवाइस दी उसको काफ़ी सारा लव भेजना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। ओह! वाओ मैम! ये सुन के बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सही बोला। आई थिंक सारे टीनेजर्स जो हैं वो बहुत ही फेस करते हैं इनसिक्योरिटी और खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और फिर बड़े होके लगता है कि अरे ऐसे क्यों था? आज अब जब जहाँ पहुँचे वहाँ पीछे मुड़ के लगता है कि अच्छा पता होता यहाँ पहुँचना है तो इतना खुद पे डाउट क्यों करते? तो आपने बहुत सही बात बोली मैम, बहुत। ओके मैम, अब मेरे पास 1-2 थोड़े फन से क्वेश्चन है। अभी हमने बहुत बात की करियर की, चैलेंजेस की। तो पहले आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी एक आइकॉनिक फिगर के साथ अगर आप डिनर करना चाहें, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई एक्ट्रेस, सिंगर, इन्फ्लुएंसर जो शायद अभी ज़िंदा हो या ना हो, तो वो कौन होंगे और आप क्या उनसे पूछना चाहेंगे? जी, ये तो नहीं पता ऑनेस्टली मैं उनसे क्या पूछना चाहूँगी, बट ऐसे 4 नाम मैं लेना चाहूँगी। वन इज़ एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, ओके, सेकंड इज़ आवर इन्फ्लुएंसर मोस्टली सेंट प्राजक्ता कोहली, यस मैम। हुँ, राइट? एंड थर्ड इज़ स्मृति ईरानी हुँ, एंड फोर्थ आई गेस नरेंद्र मोदी बिकॉज़ ये जो चारों लोग हैं ना, ये इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं कि हुँ, कुछ ना कुछ तो बात हो ही जाएगी और 15 टू 20 मिनट्स में शायद काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकते हैं। यस वो मैम। एक हुँ, एक्सपीरियंस ही काफ़ी डिफरेंट होगा। यस मैम। और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड हूँ स्पेशली प्रियंका चोपड़ा, प्राजक्ता कोहली और हुँ, स्मृति ईरानी, हाउ दे हुँ, हैव कम इन देयर लाइफ। यस मैम। सो वाओ मैम! काफ़ी बढ़िया आपने सारे उसमें से एक-एक को बताया, बहुत अच्छा लगा मैम सुन के। अम, ओके मैम, दूसरा फन क्वेश्चन है मेरा कि ऐसी कौन-सी किताब है या मूवी है, जिसने आपको बहुत इंस्पायर करा हो नंबर 1 या नंबर 2 आपको लगता है कि आपकी जो पर्सनल जर्नी है, ऐसे नहीं बोलते कि ये मूवी देखी और लगा कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी पे बनी है। तो ऐसा आपको कभी लगा है किसी मूवी को देख के या कोई मूवी ने आपको बहुत हाँ, एक्चुअली बताइए? मैं बहुत बिंज वॉच करती हूँ, काफ़ी सीरीज़, मूवीज़, हुँ, बुक्स सब चलता रहता है, तो उतना मुझे ऑनेस्टली ध्यान भी नहीं रहता बट काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ मैं हर मूवी देखने का, मेरे कुछ ना कुछ रिव्यूज़ रहते हैं। हाँ। बट रिसेंटली मैंने फिक्शन से थोड़ा-सा स्विच करके पर्सनल डेवलपमेंट हुँ, बुक्स लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना हुँ, शुरू करा। सो यस मैम। उसमें से कुछ बुक्स ऐसी थी जो पढ़ के मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए ही बनी थी, मतलब ये तो मेरी सारी हुँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। जितने सालों से मैं बहुत गलत सोचती थी या यस। सोचने का तरीका ही बहुत हुँ, डिफरेंट था, वो उन बुक्स की वजह से चेंज हुआ। सो उसमें से मैं यस। कुछ बुक्स का नेम लेना चाहूँगी, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, इट्स अ वेरी हुँ, गुड बुक। लाइक अच्छा। जो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो हमें कैसे प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने हैं, वो बुक हुँ, बहुत अच्छे यस से मैम। बताती है। या हमेशा लाइफ में विन लूज़ 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 सिचुएशंस नहीं, विन-विन सिचुएशंस भी हो सकती हैं। सो वो हुँ, हम यस कैसे मैम। डेवलप कर सकते हैं। हुँ, और एक बुक है साइको साइबरनेटिक्स, जो हमें हमारी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने पे मतलब बताती है कि सिर्फ हम इमेजिनेशन से लाइफ में कितना कुछ जीत सकते हैं। हुँ, यस So मैम। power of imagination, psycho cybernetics, and one book was there. Then Paniji, who talks about focus. So हम focus को बहुत ही like छोटा सा सब्जेक्ट मानते हैं, बट अगर हम हुँ, डिटेल में जाके समझे तो
फोकस इज अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट और Yes. हमें उस पर कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, तब जाके कहीं वी गेट द थिंग फोकस. सो Yes, ma'am. ये तीनों बुक्स ने काफी हेल्प करी है मेरे को ग्रोथ में. Yes, ma'am. वाह मैम, आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने नोट, ये पक्का नोट कर लेंगे किताब, और आई थिंक वो भी पढ़ेंगे. मैं भी पर्सनली पक्का. यस मैम. ओके मैम, अब मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने बोला कि चैलेंजेस आए थे आपके लाइफ में, और कोई भी जर्नी सीधी नहीं होती, उसमें ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स तो आने ही बनते हैं. पर आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है इन ऑब्स्टिकल्स को या इन चैलेंजेस को ओवरकम करने का? तो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी और अप्रोच टू डीलिंग विद हर्डल्स? सबसे पहले तो मैं ये सोच लेती हूँ कि लाइफ में बहुत कुछ ब्लेसिंग्स मिली है, तो जब ऐसे सेटबैक्स आते हैं मैं ब्लेसिंग्स के बारे में सोच लेती हूँ. जब वो मिली है तो आगे भी मिलेंगी, और ये वाला टाइम है, ये बहुत टेम्परेरी है और विद टाइम ये चला जाएगा. सो जो मोटिवेशन है ना, वो बहुत छोटा वर्ड है, बहुत टेम्परेरी है. वो सिर्फ 2 या 3 दिन ही वैसे भी रहता है, हमारी लाइफ में चला जाता है. पर हमें जिस चीज पे वर्क करना चाहिए वो है कंसिस्टेंसी, जो मैंने भी आई गेस 24-25 इयर्स बाद सीखी है कि कंसिस्टेंसी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी. यस मैम. तो किसी भी चैलेंज या किसी भी चीज से अगर हम फेस कर रहे हैं तो उसको भूल के ना हमें और चीजों पे फोकस करना चाहिए, जिससे तब एटलीस्ट हम वो वाला पार्ट अपनी लाइफ का निकाल सके. वरना कई बार होता है कि हम गिव अप कर जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते. मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है कि गिव अप कर दिया, नहीं समझ में आ रहा लाइफ में क्या चल रहा है. लाइफ में शेड्यूल होना बहुत जरूरी है हमारी. अगर शेड्यूल नहीं होगा ना तो हम कितनी कोशिश कर लें, हमारे लिए एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा. और ये Yes. मैंने पिछले 1 आध साल में पिछले 1 साल में सीखा है कि अगर आपके पास शेड्यूल है तो आपको रोज का दिन है ना पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल रहा है, और हम काफी अच्छे तरीके से उस समय को निकाल सकते हैं. बट वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हमारा एक घंटा कैसे जा रहा है. Yes, टू बी ma'am. वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरी आवर. यस मैम. आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली मैम कि शेड्यूल, क्योंकि मेरे को भी याद है जब 12th के बोर्ड्स एग्जाम के टाइम पे मैंने इसे पूरा बना रखा था कि 10:30 to 11:30 में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, और जब मैंने उस पे स्टिक करना शुरू करा तो आप सही बोल रहे हो, दिन का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जाता है, क्योंकि आप फोकस्ड रहते हो. है बिकॉज जहाँ मेरा कोई शेड्यूल नहीं हुआ करता था, एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है और नहीं बन सही पाता बात. शेड्यूल. हमें आउटर हेल्प लेनी पड़ती है, मेंटोर्स की, कोचेस की, कहीं ना कहीं हाँ. हमें गाइडेंस और हेल्प लेनी ही पड़ती है. बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात बोली मैम. ओके मैम, तो मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, कि ये सवाल नहीं है, ज्यादा है कि जब हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे तो हम चाहते हैं कि हर एक लीडर जो आए वो एक मैसेज के साथ उन व्यूअर्स को छोड़ के जाए. कि ऐसे होता है ना, कभी कभी आप किसी टॉक से बाहर आते हो और कहते हो कि हाँ, ये बात पे अब मैं सोच रही हूँ, मतलब इट्स अ फूड फॉर थॉट. तो मैं चाहती हूँ कि आप हम मेरे और ये वुमेन इनोवेटर के पॉडकास्ट के व्यूअर्स को किस मैसेज के साथ छोड़ना चाहते हैं. ये कोई कोट भी हो सकता है, ये कोई नॉर्मल मैसेज या कोई एडवाइस, कुछ भी हो सकती है मैम. तो आप आराम से टाइम लीजिए और बताइए क्या होगी. 2 चीजें जिस पे मैं बात करना चाहूंगी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ. एक तो अपनी लाइफ में ना कभी भी योगा और मेडिटेशन को आप बहुत छोटी चीज मत समझिए, क्योंकि ये हर बुक और हर कोई पॉडकास्ट में बताते हैं तो लोग इसको सुन के इग्नोर कर जाते हैं. सो इसको इग्नोर नहीं करना है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये 2 चीजें संभाल लोगे ना तो ये 2 चीजें आपकी लाइफ संभाल लेंगी. पहले व्यक्ति मतलब इसको नहीं छोड़ना है. इट्स लाइक दिस, ये इट्स अ मेडिसिन. और सेकेंडली एक एडवाइस मैं देना चाहूंगी, जब हम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसा टाइम आता है जब हम अपने आप पे क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या हम एंटरप्रेन्योर. बस कई बार होता है हमारे पास टाइम नहीं होते, या फिर ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, हम घर से काम कर कि हमारी वो एंटरप्रेन्योर जो जर्नी होती है ऐसा लगता है खत्म हो गई, पर एक्चुअली मेरा कभी खत्म नहीं होती. जो हमारा पैशन है ना, कभी हमें नहीं छोड़ सकता. वो
कभी ना कभी आगे जाके हमें फिर हम उससे मिल ही जाते हैं। हाँ। सो अगर आपको लाइफ में कभी ऐसा लग रहा है कि ब्रेक आ गया है या फिर मैं अपना पैशन नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ, हुँ, तो किसी ना किसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट या फिर मैं एक कैनवा डिज़ाइनर हूँ, हुँ, तो उस टूल से ना हमेशा कनेक्टेड रहो। कुछ ना कुछ हुँ, अपडेट्स लेते रहो, सीखते रहो, इंडस्ट्री में क्या हुँ, चल रहा है, चाहे खुद पे ट्राई कर लो, खुद के लिए हुँ, बना लो। पर अगर आप उससे कनेक्टेड रहोगे ना, तो आगे जाके आपको उससे उसके साथ वापस काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और हाँ, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा एज़ अ फेलियर। हुँ, जहाँ यस जहाँ मैम। आपका लग रहा है ना आपको अर्निंग खत्म हो रही है या फिर हम कुछ कर नहीं पा रहे लाइफ में, वहाँ से लर्निंग शुरू करनी होती है। हाँ। हुँ, यस मैम, बहुत सही बोला मैम आपने। यस। ओके तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम और ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही रियल पॉडकास्ट था। तो मैम अब मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम कि आप आए, हमारे साथ जुड़े और मतलब हमारे व्यूअर्स को बहुत प्रेरणा मिलेगी जैसे क्योंकि आपने इतने ऑनेस्टली बोला ना कि मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, फिर आपने इंस्पिरेशन ढूँढी, फिर आज आपने अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करा है। मैम ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे और आई एम श्योर कि जो लोग देखेंगे वो भी बहुत इंस्पायर्ड होंगे। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड इट वाज़ एन ऑनर टू हैव यू So हियर much for मैम। giving us this opportunity. Thank you. Thank you so much, ma'am.